Hello, my dear children. Welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. Children, we are doing SST Class 8 and here this is a book, Time Travelers, Unraveling History's Mysteries. So children, let's start chapter number 5 of Geography and the name of the chapter is Major Crops. So here you can see few pictures are made. You have to label the pictures using the help box. So help box में कुछ words दिए हैं, इन्हें आपको use करना है and you have to label the picture कि first picture में क्या हो रहा है उसका name लिखिए, second में क्या हो रहा है and then so on. आपको इस sequence में start करना है and end up to here. So this you have to do on your own. Cultivation or farming is one of the oldest and the most widespread occupation in the world. So वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किए जाने वाला ऑक्यूपेशन है कल्टीवेशन या फिर फार्मिंग एंड इट एंगेजेस अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स विद द हेल्प ऑफ मेथड्स टूल्स एंड टेक्निक्स दैट सूट देम. सो इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है जिनके पास डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, टूल्स होते हैं जिसकी मदद से वो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. Different types of crops require different environmental conditions to grow. So अलग-अलग टाइप के जो क्रॉप्स होते हैं वो उन्हें जो है रिक्वायरमेंट होती है अलग-अलग टाइप के environmental conditions की. For instance, wheat is usually grown in the temperate lands. So wheat जो है ज़्यादातर temperate lands में grow किया जाता है while rice is generally cultivated in the tropics. लेकिन जो rice है वो tropics में grow किया जाता है. Several other crops also form parts of the cropping pattern in different regions of the world. अलग-अलग crops अलग-अलग जगहों पे grow किए जाते हैं. Food crop. Plants grown for human consumption are as food are called food crops. So वो plants जो humans खाते हैं, जो हम human beings खाते हैं, हमारे consumption के लिए बनते हैं, उन्हें हम food crops कहते हैं. Food crops include cereals, pulses, oilseeds and tubers. The first is wheat crop. Here you can see the picture of wheat crop. And wheat is the most common cereal grown all over the world, especially in the temperate countries. So temperate countries में ज़्यादातर wheat को grow किया जाता है. It is the staple food for more than 1/3 of the world's population. So जो world की जो population है उसमें से जो काफी ज्यादा लोग 1/3 लोग जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की उनका ये एक स्टेपल फूड है. इन डेवलप्ड कंट्रीज व्हीट कल्टीवेशन इज कॉमनली मर्चेंडाइज्ड. डेवलप्ड कंट्रीज में जो व्हीट कल्टीवेशन है वो कंप्लीटली मर्चेंडाइज्ड है. मेजर व्हीट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज आर यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना एंड ऑस्ट्रेलिया. जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं व्हीट को, उनमें से कुछ कंट्रीज के नेम यहाँ दिए गए हैं. रशिया, यूक्रेन एंड इंडिया आर आल्सो इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हीट. और इन जगहों पे भी व्हीट को ग्रो किया जाता है. दो व्हीट कैन ग्रो इन अ वैरायटी ऑफ क्लाइमेट्स एंड सॉइल इट ग्रोज द बेस्ट इन द कूल क्लाइमेट हैविंग मॉडरेट रेनफॉल. सो जो व्हीट है वो अलग अलग जगहों पे ग्रो किया जाता है, लेकिन ये बेस्ट जो ग्रो होता है वो कूल क्लाइमेट में ग्रो होता है. Having moderate rainfall. In subtropical rains, wheat is grown in the winter as a winter crop. So जो subtropical rains होते हैं, regions होते हैं, वहाँ पे wheat जो ग्रो किया जाता है winter में as a winter crop from September to November. But in the Canadian prairies, it is grown in the spring as a spring crop from March to mid-April. लेकिन कैनेडियन प्रेरीज की बात की जाए तो वहाँ पे ये इसे एज अ स्प्रिंग क्रॉप ग्रो किया जाता है जो मार्च से लेके मिड अप्रैल तक ग्रो किया जाता है. Wheat cultivation led to the emergence of city-based societies and the beginning of early civilization, and it was one of the first crop to be cultivated on a large scale. To produce a good crop of wheat, 50 to 70 centimeter of annual rainfall is required. So अगर हम चाहते हैं कि हमें एक प्रॉपर गुड क्रॉप चाहिए व्हीट की तो हमें 50 to 70 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होना चाहिए इस जगह पे. एंड इट ग्रोज बेस्ट व्हेन द टेम्परेचर इज मॉडरेट. और ये तभी अच्छे से ग्रो करता है जब टेम्परेचर मॉडरेट होता है. अबाउट 20
डिग्री सेल्सियस टू 24 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर 20 डिग्री से लेकर 24 डिग्री तक रहता है तो अच्छे से ग्रो करता है। द सॉइल शुड बी वेल ड्रेन्ड, क्लेड एंड लूमी। जो सॉइल है यहाँ पे वेल ड्रेन होना चाहिए, क्लेई होना चाहिए और लूमी होना चाहिए। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज गुड क्वालिटी सीड्स दैट गिव हाई। ऐसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सीड्स है वो काफी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए ताकि हमें अच्छा फसल मिल सके। एंड दे मस्ट बी प्लांटेड एंड हार्वेस्टेड एट द करेक्ट टाइम। इन्हें जो प्रॉपर टाइम पे ही प्लांट किया जाना चाहिए और हार्वेस्ट किया जाना चाहिए। एंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वीड्स एंड डैमेज, और इन्हें वीड्स और डैमेज से प्रोटेक्ट रखना चाहिए। Caused by the diseases and pests. Now the next crop is rice. Here you can see rice crop in front of you. Rice is a staple cereal crop of tropical Asia. Tropical Asia का ये staple food है, and rice is grown in the April May and harvested in the early November. So April और May में ये grow किया था और early November में इन्हें harvest कर लिया था. It needs hot and moist rain to grow well. So इसे अच्छे से grow करने के लिए hot temperature चाहिए और moist जगह होनी चाहिए. Although its parent species are native to Asia and certain parts of Africa, centuries of trade and export have made it popular in many other parts of the world. So ये जो rice है, इसके जो parent species हैं वो एशिया के हैं. ये पहले से प्राइमरीली एशिया में ग्रो किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे और कुछ अफ्रीका के पार्ट्स में ग्रो किया था, लेकिन जैसे जैसे ट्रेड और एक्सपोर्ट जो है बढ़ता चला गया, इसके बाद ये डिफरेंट पार्ट्स में स्प्रेड आउट हो गया. देयर आर मोर देन 40,000 वेराइटीज ऑफ राइस कल्टिवेटेड इन द वर्ल्ड. सो वर्ल्ड में 40,000 से भी ज्यादा वेराइटीज हैं राइस की. पैडी और राइस रिक्वायर्स फर्टाइल सॉइल सच एज एलुवियल सॉइल which is found in flood plains and deltas. So ये जो राइस क्रॉप है, इसके जो सॉइल है वो एलुवियल होनी चाहिए जो फ्लड प्लेन्स में मिलते हैं या डेल्टास में मिलते हैं. इन हिली एरियाज इट इज कल्टिवेटेड ऑन टेरेस लैंड, और हिली एरियाज में ये टेरेस लैंड्स में कल्टिवेट किया जाता है. ट्रेडिशनली यंग सीडिंग्स ऑफ राइस आर सेट इन फ्लडेड फील्ड. अब जो ट्रेडिशनली जो यंग सीडलिंग्स होते हैं राइस के, वो जो है फ्लडेड एरियाज में आप सेटअप कर दिया जाता है. फ्लडेड फील्ड्स, इनके जो राइस फील्ड्स होते हैं उन्हें फ्लडेड कर देते, मींस पानी से भर दिया जाता है. राइस रिक्वायर्स एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 24 डिग्री सेल्सियस एंड प्लेंटी ऑफ सनशाइन. सो राइस को ये टेम्परेचर चाहिए और काफी सारा सनशाइन चाहिए. इट रिक्वायर्स 100 सेंटीमीटर टू 200 centimeter of rainfall and it requires deep fertile clay soil. इसे जो है deep fertile और clay soil की जरूरत होती है. Flood plains and deltas are best suited for its cultivation. जो flood plains होते हैं या जो deltas होते हैं वो cultivation के लिए best suited है. The cultivation of this crop is labor intensive. और जो कल्टीवेशन है इस क्रॉप का वो लेबर इंटेंसिव है, एज इट इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्लोइंग, प्लांटिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग एंड सेपरेशन ऑफ ग्रेन. क्योंकि ये इंक्लूड करते हैं सॉइल का प्रिपरेशन, प्लोइंग, प्लांटिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग एंड सेपरेशन ऑफ ग्रेन. सो ये सारी चीजें इंक्लूड करते हैं. राइस इज इंटेंसिवली कल्टिवेटेड इन इंडिया. राइस जो है इंडिया में कल्टिवेट किया जाता है. चाइना में, जापान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, थाईलैंड एंड म्यांमार. सो इन सारी जगहों पे काफी ज्यादा अमाउंट में ये ग्रो किया जाता है. इन इंडिया राइस इज ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब. सो इंडिया में इन सारे प्लेसेस में ये ग्रो किया जाता है. द नेक्स्ट क्रॉप दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज मेज. द नेटिव प्लेस ऑफ मेज इन साउथ अमेरिका एंड इट was introduced to Europe by Christopher Columbus. So maize जो है उसका नेटिव प्लेस जो है वो है साउथ अमेरिका, और यूरोप में ये क्रिस्टोफर कोलंबस ने इंट्रोड्यूस किया था. इट इज ग्रोन वाइडली इन द अमेरिका एज अ फूड एंड अ फॉडर क्रॉप. सो अमेरिका में से एज अ फूड और फॉडर क्रॉप ग्रो किया जाता है. एंड
It is also used for manufacturing ethanol, beer, cornflakes and animal feeds. So इन सारी चीजों को बनाने के लिए भी ये corn यूज किया जाता है. The term maize is derived from the Spanish word. ये जो term है maize, इसे एक Spanish word से बनाया गया है, जिसका मतलब है, जो word है maize for the plant. And in the British Isles it's called sweet corn, और British language में कहा जाता है ये sweet corn भी कहा जाता है. It is eaten as a vegetable rather than a grain. इसे एक वेजिटेबल के रूप में खाया जाता है, ग्रेन से अलग. Now here you can see the picture of maize crop. In India, maize is grown all year round. पूरे साल ये ग्रो किया जा सकता है. It is predominantly a kharif crop. ये खरीफ crop है. Maize is the third most important cereal crop in India after rice and wheat. So rice और wheat के बाद जो third number पे crop आता है वो है maize, and it accounts for around 10% of the total food grain production in the country. और ये जो भी total 10% के आसपास जो food grain है पूरी country का, उसको comprise करता है. Maize grows under a variety of geographical conditions. Maize जो है grow करता है बहुत सारे geographical conditions हैं उसके अंदर. It grows at an altitude of 25,000 meters above sea level. और ये grow करता है इतने altitude पे sea level के ऊपर, and requires well drained soil, और इसे भी well drained soil की जरूरत होती है. A warm climate with temperature between 21 degrees Celsius and 28 degrees Celsius. इसका जो climate है इनके between होना चाहिए. Its growth depend more on summer temperatures, और इसकी जो growth है वो depend करती है high summer temperatures पे than on high average temperature. The USA and China leads in the production of maize, followed by Brazil. USA और China जो है यहाँ पे जो है काफी ज्यादा production होती है maize की. उसके बाद ब्राजील, मेक्सिको और इंडोनेशिया और इंडिया में होती है. Today the world's harvest almost as much maize as wheat. अब जो आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड में काफी ज्यादा हार्वेस्ट होने लगा है मेज का जितना कि व्हीट और राइस का किया है. Now let's learn about millets, and the most popular spices of millets is the pearl millet. So जो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर स्पीशीज है मिलेट का वो है pearl millet. So सबसे ज्यादा पॉपुलर है. एंड ज्वार, बाजरा एंड रागी आर इम्पोर्टेंट मिलेट क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया. सो ये तीन तरीके के मिलेट क्रॉप्स हैं जो इंडिया में ग्रो किए जाते हैं. दे आर ग्रोन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एज अ फूड एंड फॉडर क्रॉप. इन्हें भी फूड और फॉडर क्रॉप के रूप में ग्रो किया जाता है. द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बोथ wild and cultivated species of millet exist in tropical western area. जो बहुत बड़ा नंबर है वो दोनों ही वाइल्ड और कल्टिवेटेड स्पीशीज का मिलेट्स में, वो ट्रॉपिकल एरियाज में जो ट्रॉपिकल वेस्टर्न अफ्रीका है वहां पे ग्रो किया जाता है. विच मोस्टली लाइकली वॉज इट नेटिव होम, जिसे इसका नेटिव होम भी कहा जाता है. ये यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ज्वार क्रॉप जिसे हम सोरगम भी कहते हैं, और रागी क्रॉप दैट इज द फॉर्म ऑफ अ मिलेट. नाउ मिलेट्स आर particularly grown in the semi-arid tropics of Asia and Africa. जो मिलेट्स हैं इन्हें जो है जो भी semi-arid tropics हैं एशिया और अफ्रीका के वहाँ पे ग्रो किया जाता है. and can endure harsh environment, और ये harsh environment को भी survive कर सकते हैं. Now India is the world's largest producer of millets. इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट का. Apart from being the fodder crop, the majority of millet produced in India are used for livestock fodder and alcohol production. So इन चीजों के लिए भी millets को यहाँ पे produce किया जाता है. Millets like wheat is a grass crop. ये grass crop भी है. It contrasts to other cereal grains. It grows in less fertile soil and can survive any unfavorable conditions such as temperature between 25 degree to 35 degree
and low rainfall. So किसी भी तरीके का अगर टेम्परेचर हो, चाहे कम बारिश हो या टेम्परेचर कैसा भी हो, ये हर जगह ग्रो इजिली कर लेता है. दे हैव शॉर्टर ग्रोइंग सीजन, और इनके जो ग्रोइंग सीजन है वो काफी छोटे होते हैं, मीन्स कम टाइम में ही ग्रो कर जाते हैं. मिलेट्स कैन ग्रो वेल इन पुअर, ड्राई एंड इनफर्टाइल सॉइल. सो अगर किसी भी तरीके का खराब सॉइल भी होगा तो वहां भी इजिली ग्रो किए जा सकते हैं. दिस इज वाई मिलेट इज प्रोड्यूस्ड popularly grown in countries surrounding the Sahara Desert in Western Africa. तो इसीलिए सहारा डेजर्ट जो है जो वेस्टर्न अफ्रीका में है वहां पे भी ये ग्रो किए जाते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज फाइबर क्रॉप्स. अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ फाइबर क्रॉप्स के बारे में जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है. सो द फर्स्ट क्रॉप हियर इज कॉटन. कॉटन इज एन इम्पोर्टेंट क्रॉप ग्रोन फ्रॉम इट्स फाइबर. For its fiber which is spun and woven into clothes. So आपने पढ़ा होगा, आपने कॉटन के क्लोथ्स पहने भी हैं. So कॉटन के क्लोथ्स पहले कैसे बनते हैं? कॉटन फाइबर को लिया जाता है और उसको फिर जो है फैब्रिक मींस थ्रेड्स स्पन किए जाते हैं, उसके बाद फैब्रिक बनता है, उसके बाद क्लोथ्स बनते हैं. कॉटन ग्रोज इन ड्राई ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. सो जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं या जो सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वर्ल्ड के, वहां पे ग्रो किया जाता है. एंड द मेजर कल्टीवेटर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड आर द यूएसए, इंडिया, चाइना, इजिप्ट, पाकिस्तान एंड रशिया. सो जो मेजर कल्टीवेटर हैं कॉटन के वर्ल्ड में वो ये सारी जगह हैं जहां पे ये ग्रो किया जाता है. इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया वेयर कॉटन प्रोडक्ट where cotton production. Recently, India has surpassed China as the largest producer of cotton in the world. Other leading cotton growing countries are Brazil and Turkey. So India जो है काफी बड़ी प्रोड्यूसर है कॉटन की, और अभी इसने चाइना को पीछे छोड़ा है कॉटन प्रोडक्शन. और कुछ और कंट्रीज के यहाँ नेम दिए गए हैं जो which are the leading cotton producers. Here you can see a bud of cotton. Cotton कैसे bud में लगा हुआ है. In India, about 70% of the total cotton is produced in Gujarat, Gujarat, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh, and Karnataka, Tamil Nadu, Punjab, Haryana, and Rajasthan. So इन सारे states में इंडिया में जो है total 70% जो cotton है वो grow किया जाता है. Tropical and subtropical climates are well suited for cultivation of cotton. So cotton की cultivation के लिए tropical और subtropical दोनों ही जो climate है वो suitable है. It requires a long frost-free period. इसे एक लंबा frost-free period की जरूरत होती है. Plenty of sunshine and moderate rainfall during the time of sowing. So इसे जो है काफी सारे sunshine की जरूरत होती है. क्लाइमेट जो है, जो रेनफॉल है वो काफी कम भी होगा तो भी चल जाएगा. मॉडरेट होना चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सोइंग के टाइम एक मॉडरेट रेनफॉल चाहिए ने. दो इट ग्रोज वेल इन इरिगेटेड वाटर्स आल्सो, लेकिन ये इरिगेटेड वाटर है उसमें भी अच्छे से ग्रो करता है. ड्यूरिंग द राइपनिंग सीजन इट नीड्स क्लियर एंड सनी स्काइज. लेकिन जब इनका राइपनिंग सीजन होता है तो इन्हें जो है क्लियर और सनी स्काइज की जरूरत होती है. नेक्स्ट इज जूट. जूट लाइक बैम्बू is a natural fiber that grows quickly and can be woven into durable materials. So जूट जो है बैम्बू की तरह ही होता है जिससे इजिली फटाफट नए मटेरियल्स को बनाया जा सकता है, वूव किया जा सकता है, मीन्स बुना जा सकता है. जूट इज अफोर्डेबल एंड स्ट्रॉन्ग विथ मेनी एनवायरमेंटल बेनिफिट्स. ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, स्ट्रॉन्ग है और काफी सारे एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी हैं इसके. जूट इज ग्रोन फॉर इट्स फाइबर that is spun into coarse and strong threads. So जूट को जो है इसके फाइबर के लिए ग्रो किया जाता है जो धीरे धीरे जाके strong threads में कन्वर्ट हो जाते हैं. And it is also known as a golden fiber. इसे golden fiber भी कहा जाता है. The very fine jute threads are used for making imitation silk. So imitation silk बनाने के लिए ये जो बहुत फाइन जूट के जो थ्रेड्स होते हैं उन्हें यूज किया जाता है.
इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड. इंडिया जो है काफी बड़ी प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है जूट की. द मेन जूट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया आर कोर्स मटेरियल्स फॉर sacks, food grade agro bags, grocery bags, shopping bags, floor mats, ropes, twines, etc. So यहाँ पे जो major jute producers हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में, उनके यहाँ they produce many things out of these. They produce sacks, बोरियां बनाते हैं, food grade agro bags को बनाते हैं, ग्रोसरी बैग्स बनाते हैं, शॉपिंग बैग्स बनाते हैं, फ्लोर मैट्स, रोप्स और ट्विल्स, ये सारी चीजें बनती हैं जूट से. जूट कल्टीवेशन इज सपोर्टेड बाय क्ले लोम एंड सैंडी लोम सॉइल. सो जूट कल्टीवेशन के लिए ऐसा सॉइल की हमें जरूरत है. एक्सेसिव रेनफॉल एंड वाटर लॉगिंग इज हार्मफुल फॉर जूट. excessive rainfall and water logging is harmful for jute production. So अगर बहुत ज्यादा बारिश है तो वो उससे जो है जूट की जो क्रॉप है वो खराब हो सकती है. Generally March to May is the sowing season for jute plant in India. So ये जो प्लांट है ये मेनली इस सीजन में ग्रो किया जाता है. बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रेनफॉल एंड सॉइल टाइप ऑफ द स्पेसिफिक रीजन. लेकिन रेनफॉल कैसा है या जो सॉइल का कंडीशन है वो कैसा है उस रीजन का, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दैट. डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ सोइंग, द हार्वेस्टिंग कैन बी डन बिटवीन जून एंड सितंबर. सो जून, अगर हम जो है टाइम ऑफ सोइंग देखें तो जो हार्वेस्टिंग है इसे किया जा सकता है जून से लेकर सितंबर के बीच में. जूट इज द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर एंड इज 100% बायोडिग्रेडेबल, एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड रिसाइकलेबल. सो जूट जो है एक चीपेस्ट नेचुरल फाइबर है और जो है ये 100% बायोडिग्रेडेबल है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है और रिसाइकलेबल भी है. हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट with temperature ranging from 24 degrees Celsius to 37 degrees Celsius is ideal for jute plantation. So, jute plantation के लिए ये climate जो यहाँ पे दिया गया है, this is the perfect. Now let's learn about beverage crops. अब beverage का मतलब होता है वो crop जिसे हम as a drink use कर सकते हैं. So here the first one is the tea. And tea is an evergreen bush and is a popular beverage crop grown in the plantation. So ये एक evergreen bush है और ये बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा popular beverage है and it is native to monsoon Asia. So ये जो monsoon Asia है वहाँ का जो है native crop है. And tea is prepared by drying tender leaves. जो tender means जो कोमल जो leaves हैं, जो delicate leaves हैं, उनसे ये बनाया जाता है. The tea plant grows well on hill slopes. So hill slopes में ये बहुत easily grow किया जा सकता है. The bush cannot tolerate stagnant water. और ये जो bush है, ये रुका हुआ पानी या जो stagnant water है उसे tolerate नहीं कर सकता. Hot and humid, especially cloudy weather is more suitable for growing tea. So tea को grow करने के लिए ये जो weather है hot और humid वे काफी ज़्यादा important है. The availability of cheap labor on the regular basis is essential for the success of tree plantation. So जो labor है वो काफी ज़्यादा cheap होना चाहिए ताकि tree plantation को easily carry on किया जा सके. It needs well-drained, loamy soil and gentle slopes. इसे जो है well-drained, loamy soil और gentle slopes की जरूरत होती है. The leading producers of tea in the world are India, China, Sri Lanka, Kenya, Indonesia and Japan. So ये कुछ tea producers हैं world में and skilled workers are needed to pluck the tender leaves. टेंडर लीव्स को प्लग करने के लिए स्किल वर्कर्स की जरूरत होती है. इन इंडिया द टी लीव्स आर प्लग्ड ऑलमोस्ट एवरी फोर्टनाइट. सो हर फोर्टनाइट जो है इंडिया में टी लीव्स को प्लग किया जाता है. नाउ द नेक्स्ट बेवरेज इज कॉफी. कॉफी इज आल्सो अ पॉपुलर बेवरेज क्रॉप एंड इज नेटिव टू एथियोपिया इन
Africa. It is also a plantation crop grown on large scale. So ये भी एक plantation crop है जो काफी बड़े state में grow किया जाता है. Coffee needs frost free high humidity type of climate. So coffee को एक frost free high humidity type का climate चाहिए. Well drained loamy soil and high slopes. ऐसी जगह पे ही crop जो कॉफी है वो ग्रो करती है. स्टॉर्मी कंडीशंस आर हार्मफुल. अगर जो कंडीशन है वो वेदर की अगर वो स्टॉर्मी हुई तो ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल रहेगी कॉफी के लिए. Thus it always grows under shady trees. तो इसलिए हमेशा shady trees के अंदर ही ग्रो करता है. The total world production of coffee is about 7.5 million tons. जो वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन है कॉफी का वो टोटल 7.5 मिलियन है टन्स है. ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड फॉलोड बाय कोलंबिया, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, यूथोपिया, युगांडा एंड आइवरी कोस्ट. इट इज अ वेरी पॉपुलर ड्रिंक इन यूएसए. सो यूएसए में काफी ज्यादा पॉपुलर है ये. कॉफी रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस मॉडरेट. पूरे साल से इतने ही टेम्परेचर की जरूरत होती है. एंड मॉडरेट रेनफॉल. द सॉइल शुड बी वेल ड्रेन. जो सॉइल है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए एंड रिच इन आयरन एंड कैल्शियम. और आयरन और कैल्शियम में रिच होना चाहिए. व्हाट इज कैश क्रॉप? कैश क्रॉप्स आर क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड फॉर देयर कमर्शियल वैल्यू rather than for use by the grower. So जो कैश क्रॉप्स है ये ज्यादातर कमर्शियल वैल्यू के लिए ही ग्रो किया जाता है. जो ग्रो करता है इसे ग्रोवर्स है वो काफी कम इसे यूज करता है. The first cash crop is sugar cane. Sugar cane is an important cash crop that is cultivated in more than 90 countries and is native to the warm temperature. So 90 से ज्यादा कंट्रीज में ग्रो किया जाता है और इससे जो है वार्म टेम्परेचर की जरूरत होती है. एंड ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ साउथ एशिया. ये साउथ एशिया का एक नेटिव क्रॉप है. इट इज कल्टिवेटेड फॉर इट्स जूस कॉल्ड सुक्रोज व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड एंड प्यूरिफाइड इन स्पेशलाइज्ड फैक्ट्रीज एंड यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन फूड इंडस्ट्री. सो इसके जो जूस है उसमें सुक्रोज होता है जो काफी सारी इंडस्ट्रीज यूज करती है, फूड इंडस्ट्रीज यूज करती है. इट इज ऑल्सो फर्मेंटेड टू प्रोड्यूस एथेनॉल. इसे फर्मेंट करके एथेनॉल भी बनाया जाता है. एंड इको फ्रेंडली फ्यूल जो कि एक इको फ्रेंडली फ्यूल है. द ग्रेट डिमांड फॉर शुगर ऑल ओवर द वर्ल्ड हैड लेड टू द एक्सटेंसिव कल्टिवेशन ऑफ शुगर केन which accounts for 80% of sugar produced. So जो वर्ल्ड है उसमें काफी ज्यादा डिमांड है शुगर की और इसलिए ही शुगर केन को काफी ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है. द रेस्ट ऑफ इज मेड फ्रॉम शुगर बीट्स. बिफोर द 18th century cultivation of sugar cane was largely confined to India. So 18th century से पहले जो है शुगर केन जो है वो इंडिया में ही ग्रो किया जाता था. काफी ज्यादा एरिया जो था इंडिया का वहां पे ग्रो किया जाता था. Today, Brazil leads the production of sugarcane, followed by India, China, Thailand, Cuba, Pakistan and Mexico. तो सबसे पहले की जब बात की जाए 18th सेंचुरी की बात की जाए तो इंडिया जो है सबसे नंबर 1 प्रोड्यूसर था शुगरकेन का. लेकिन अब ब्राजील ने प्लेस ले ली है. उसके बाद इंडिया है, फिर चाइना है, फिर थाईलैंड है, देन क्यूबा, देन पाकिस्तान एंड देन मैक्सिको. Sugarcane cultivation requires a tropical and subtropical climate as it is sensitive to frost. So sugarcane cultivation को जो है tropical climate की जरूरत होता है क्योंकि ये काफी ज्यादा sensitive होता है frost में. And it requires plenty of water. इसे काफी सारे पानी की भी जरूरत होती है. Therefore, a minimum of 60 centimeter for a continuous period of more than 6 to 7 months each year. And either for natural rainfall or through irrigation is necessary. So water किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो नेचुरल हो या फिर इरिगेशन के रूप में हो, किसी भी तरीके की रेनफॉल इसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और इसे जो है 60 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल चाहिए 6 से 7 मंथ तक. Now the next
crop here is rubber. Natural rubber is obtained from the milky fluid called latex. So latex एक milky fluid है जो help करता है natural rubber बनाने में. It is trapped from an incision made into the bark of the tree from where the sticky milk color latex sap is collected and refined into usable rubber. So एक जो rubber tree है उसमें जो है एक इंसिजन मीन्स एक कट किया जाता है जिसके बाद व्हाइट कलर का एक लिक्विड जो है फ्लो करता है वो एक कंटेनर में कलेक्ट किया जाता है. जब ये कंटेनर में लिक्विड कलेक्ट हो जाता है फिर इसे यूज किया जाता है, इसे रिफाइन किया जाता है और यूजेबल रबर बनाया जाता है. नेचुरल रबर हैज अ फ्लेक्सिबल टेक्सचर. नेचुरल रबर जो है उसका जो टेक्सचर है वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है एंड इज वाटरप्रूफ भी होता है. Ideal for manufacturing tires and tubes and numerous items used in factories at home. So काफी सारी चीजें बनाई जाती है इस रबर से. टायर्स जो हो गए या ट्यूब्स हो गए, काफी सारे आइटम्स जो फैक्ट्रीज और घरों में यूज किए जाते हैं. तो ये सारी चीजें नेचुरल रबर से बनाई जाती हैं. You can see the collecting latex sap from the rubber tree. The countries leading in the production of natural rubber are Thailand, Indonesia, Malaysia, then India, and then Vietnam. Now in India, Kerala is the largest producer of natural rubber. So India में केरला जो है वो काफी बड़ी producer है natural rubber की. Rubber trees grow in area of heavy rainfall of around 250 centimeters. So rubber tree जो है ऐसी areas में grow किए जाते हैं, which is evenly distributed without any marked dry season and with at least 100 rainy days per year. So this is the favorable condition that is needed for our plant. Temperature condition should be almost 25 degree to 34 degree Celsius and the high atmospheric humidity of the area should be 80% must be present. It requires about 6 hours of bright sunny and calm weather. So इसमें जो requirement होती है वो 6 आवर्स जो है ब्राइट और सनी डे होना चाहिए, वेदर काम होना चाहिए. द सॉइल नीड्स टू बी वेल ड्रेन और जो सॉइल है वो वेल ड्रेन होना चाहिए, तभी रबर इजीली प्रोड्यूस किया जा सकता है. नाउ व्हाट आर द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट्स? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट रिफर्स टू द एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज farm production in order to meet the growing demand of increasing population. This can be achieved in many ways such as increasing the crop area, the number of crops grow, improving irrigation facilities, use of fertilizers and high yielding variety of seeds. So एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में ये सारे फीचर्स आते हैं. इसमें जो है नंबर ऑफ क्रॉप्स जो है कितने हैं, जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो इम्प्रूविंग होनी चाहिए, फर्टिलाइजर्स जो है यूज किए जाते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी में. And the mechanism of agriculture is also another aspect of agriculture development. जो mechanism है agriculture का वो भी एक दूसरा aspect है agriculture development का. The ultimate aim of agriculture development is to increase food security. जो ultimate aim है agriculture development का वो है food security को increase करना. Agriculture has developed at different places in different parts of the world. Agriculture जो develop हो चुका है अलग अलग parts में, and developing countries with large population usually practice intensive agriculture where crops are grown on small holdings mostly for subsistence. So जो भी developing countries है वो क्या करते हैं, वो crops को grow करते हैं क्योंकि इनकी जो population है काफी ज्यादा large है और ताकि वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं जहाँ पे क्रॉप्स को जो है छोटे छोटे एरियाज में ग्रो किए जाते हैं खुद के गुजारे के लिए. लार्ज होल्डिंग्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर. और जो जिनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड है वो कमर्शियल एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया करते हैं, एज इन यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया. विद द हेल्प ऑफ 2 cases studies of farms, one from India and from other and the other from USA, let us understand about agriculture in the development of the developed countries.
developing and the developed countries. So here we are talking about two cases. दो cases के बारे में पढ़ेंगे, एक इंडिया से है, दूसरा यूएसए से है. क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और यूएसए डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो क्या क्या चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं एग्रीकल्चर को. अ फार्म इन इंडिया. सो फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इंडिया के बारे में. देयर इज अ स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन गाजीपुर. सो गाजीपुर में एक विलेज है जिसका नाम है आदिलाबाद एंड इट इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. सो उत्तर प्रदेश में ये विलेज है. Munna Lal is a small farmer in this village who has farmland of about 1.5 hectare. So Munna Lal एक small farmer है जिसके पास इतना land है. His house is in the main village और उसका जो house है main village में. He purchases high yield variety of seeds from the market every alternate year. हर साल वो एक high yield variety seeds की जो variety है उसे खरीदता है. Every alternate year means एक साल छोड़ के. The land is fertile and he grows at least 2 crops in a year. एक साल में 2 crops को grow करता है, which are normally wheat or rice and pulses. या तो wheat करेगा या pulses करेगा या rice या फिर pulses. The farmer takes advice to his friends and elders as well as government agriculture officers regarding farming practices. वो अपने friend से और government से जो है advice लेता रहता है farming practices के लिए. He takes a tractor on rent for plowing his field, though some of his friends still use traditional method of using bullocks and plowing. So वो जो एक ट्रैक्टर को यूज करता है अपने फील्ड को प्लो करने के लिए, लेकिन उसके जो कुछ फ्रेंड्स हैं अभी भी बुलक कार्ट्स को यूज करते हैं. There is a tubewell in the nearby field which he takes on rent to irrigate his field. पास में एक ट्यूबवेल है जिसे वो रेंट पे लेता है और अपने फील्ड में इरिगेशन करता है. Munna Lal also has 2 buffaloes and few hens. उसके पास 2 buffaloes भी हैं, कुछ hens भी हैं. He sells milk in a cooperative store located in a nearby town. He is a member of the cooperative society, which also advises him to on the type of fodder for his animals. So जहाँ पे वो अपने milk जो buffaloes का जो milk है उसे जो सेल करता है, वहाँ का वो एक मेंबर भी है जो उन्हें जो है टाइम से बताता रहता है किस तरीके का फॉडर उनके एनिमल्स के लिए जरूरी है. सेफ्टी मेजर्स क्या क्या लेने चाहिए अपने एनिमल्स के हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, और क्या क्या मेथड्स यूज करने चाहिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का. ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज. समटाइम्स ही टेक्स क्रेडिट फ्रॉम द बैंक और द एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बाय HYB सीड्स एंड इम्प्लीमेंट्स. सो सारे फैमिली मेंबर्स उसकी हेल्प करते हैं और कभी कभी वो बैंक से लोन भी ले लेता है, क्रेडिट ले लेता है और वो डिफरेंट टाइप्स के सीड्स खरीदता है और इम्प्लीमेंट्स भी खरीदता है. He sells his produce in the mandi local in a nearby town. वो जो भी चीजें ग्रो करता है उसे वो अपने पास के मंडी में सेल कर देता है. Since majority of the farmers do not have large storage facilities, they are forced to sell the produce even when the market is not favorable for them. So कई सारे ऐसे farmers हैं जिनके पास अपना जो भी प्रोडक्ट है उसे रखने के लिए प्रॉपर वेयर हाउस कह सकते हो वो नहीं है या स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, तो वो क्या करते हैं, भले ही मार्केट के रेट लो हो उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ता है कम कीमत पे. इन रिसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट हैज टेकन सम स्टेप्स टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटीज. कई साल अभी जो है रिसेंट के जो साल है उसमें गवर्नमेंट ने काफी सारे स्टेप्स लिए हैं जिससे उन्होंने फार्मर्स को हेल्प आउट किया है. Now let's learn about the farmer, a farm in USA. USA में एक farm है उसके बारे में पढ़ते हैं. The average size of the farm in the USA is much larger than that of the Indian farms. So जो average size है farm का USA में वो Indian farm से काफी ज़्यादा बड़ा है. A typical farm size in the USA is 250 hectares. The farmer generally resides in the farm. जो farmer है वो farm में रहता है. Some of the major crops grown are corn, soybean, wheat, corn and cotton and sugar beet. So कुछ major crops जो यहाँ पे grow किए जाते हैं वो ये हैं. Joe Horan, a farmer in the Midwest USA in lower state owns about 300 hectares of land. So यहाँ पे अब जो हॉर्न की बात हो रही है, जो एक farmer है उसके पास 300 हेक्टेयर farm है. He grows corn on his field after making sure that soil and water resources meet the needs of his crop.
सो उसने अपने फार्म में क्या ग्रो किया, क्रॉप कॉर्न को ग्रो किया, सब सारे कंडीशंस जो भी हैं जो चाहिए उसके लिए क्रॉप को ग्रो करने के लिए वो सबको चेक किया उसने. Adequate measures are taken to control pests that can damage the crops, and from time to time he sent the soil samples to the soil testing laboratories to check whether the nutrients are sufficient or not. So उसने जो है टाइम टू टाइम उसने जो है सारी सॉइल वगैरह को चेक किया, सॉइल टेस्टिंग की, लेबोरेटरी में सब कुछ चेक कराया, न्यूट्रिशन वगैरह सब क्रॉप का सही है कि नहीं है. द रिजल्ट हेल्प्स जो हॉरन टू प्लान अ साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम, जिसके बाद जो ने एक साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम को प्लान किया. His computer is linked to the satellite which gives him the precise picture of his field. उसका जो कंप्यूटर है वो उसके जो फील्ड है उसके पिक्चर्स को सैटेलाइट के द्वारा उस तक भेज रहा था. This helps him to use chemical fertilizers and pesticides wherever they are required. So इसके वजह से जहाँ पे भी केमिकल फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स की जरूरत है, वहाँ पे वो चीज उसे अपने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, जिससे वो इजीली वहाँ पे वो चीजें स्प्रेड आउट कर सकता है. He uses tractors, seeds, levelers, combine harvester and thresher to perform various agricultural practices. So अलग-अलग agricultural practices को perform करने के लिए उसके पास सारे जो मशीनरीज हैं, grains are stored in the automated grain storage or dispatched to market agencies. So grain को store करने के लिए उसके पास automated grain storage भी है. The farmers in the USA work like a businessman and not like a peasant. जो फार्मर्स होते हैं यूएसए में वो बिजनेसमैन की तरह वर्क करते हैं, ना कि पीजेंट वर्कर्स की तरह. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फार्म इन इंडिया एंड द फार्म इन यूएसए. नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर. नेम द मेजर व्हीट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. सो आपको उन कंट्रीज के नेम लिखने हैं जो व्हीट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं. व्हाई इज राइस अ लेबर इंटेंसिव क्रॉप. राइस को लेबर इंटेंसिव क्रॉप क्यों कहा जाता है? क्योंकि राइस की फार्मिंग 2 टाइम्स होती है. एक बार उसका जो है मेन क्रॉप को ग्रो किया था, फिर उसको जो है स्प्रेड, फिर जो है जब वो थोड़ा सा ग्रो हो जाता है फिर उसे वापस से प्लक आउट करके पूरे फील्ड में स्प्रेड आउट किया था. इसलिए कहा जाता है कि राइस इज अ लेबर इंटेंसिव क्रॉप. नेम सम इम्पोर्टेंट मिलेट ग्रोन इन इंडिया. इंडिया में ग्रो करने वाले कुछ मिलेट्स के नेम बताने हैं आपको. ज्वार, बाजरा, like this. Name the temperature condition for the wheat crop. So wheat crop के लिए क्या temperature condition चाहिए? That you have to write. What are the advantages of jute fiber? Jute fiber के क्या क्या advantages हैं? This is to be written. Answer the following question in detail. What are the conditions required for the growth of rice and cotton? Rice और cotton को grow करने के लिए क्या क्या conditions की जरूरत है? Write a note on agricultural development in India. Agricultural development में के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? That you have to write a note on that. Explain the main categories of crops. कौन कौन सी categories of crops हैं? That you have to write. What are the main beverage crops? So beverage crops we have learned about tea and coffee. You have to write about them. Explain the condition required for their cultivation. So क्या क्या कंडीशन चाहिए इनकी कल्टिवेशन के लिए? That is to be written here. Explain how wheat is cultivated. So wheat को कैसे cultivate किया जाता है? This is to be written here. So children, I hope that you have understood the chapter and you have to complete the exercise that is given to you as homework. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay elated.